So the theory of cognitive development and its application with the stage of cognitive development. शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था cognitive development. Cognitive development means your intellectual development. ये बच्चे का जो ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है प्याजे ने दी है, वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर थ्योरी दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, और ये आपके एग्जाम्स में आनी ही आनी है. लेके चलिए, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि इट्स वेरी फेमस थ्योरी. प्याजे ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि हाउ अ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप्स, तो हमें इसके बारे में करना है. और क्या कहते हैं, और आप इस लेके चलना आपके फाइनल एग्जाम में आगे. सो लिसन वेरी केयरफुली एंड prepare this theory well. So here are the points to discuss. Into cognitive development, cognitive theory by Piaget, intellectual development of a child, stages in intellectual development, learning of child, criticism of Piaget's theory, evaluation. So here's the introduction to cognitive development. Cognition refers to thinking and memory processes, and cognitive development refers to long-term changes in these processes. One of the most widely known perspectives about cognitive development is the cognitive stage theory of a Swiss psychologist named Jean Piaget. So basically cognition क्या है, आपकी thinking है, आपका thought process है, आपकी memory processes है. It's completely related to your intellectual level. आपका mind कैसे workout करता है उससे related है. और ये थ्योरी हमें दी है स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे जी प्याजे. Piaget's theory of cognitive development. Jean Piaget from 9th August 1896 to 16th September 1980 was a Swiss psychologist known for his work on child development. Piaget's theory of cognitive development and epistemological view is together called genetic epistemology. Piaget concluded that intellectual development is the result of the interaction of hereditary and environmental factors as the child develops and constantly interacts with the world around him. Knowledge is invented and reinvented. He saw cognitive growth as an extension of biological growth and as being governed by the same law and principles. He argued that intellectual development controlled every other aspect of development, emotional, social and moral. देखिए प्याजे ने जो हमें थ्योरी दी है, उन्होंने कहा है कि एक बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कंप्लीट रोल है हेरिडिटी का, तो है ये जो जीन्स डिसाइड करती हैं, प्लस ये एनवायरनमेंट का भी है. तो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहां से नॉलेज ग्रैब करता है और अपनी तरफ से अपने माइंड से कुछ ना कुछ इन्वेंट करता है और री इन्वेंट करता रहता है. सो जो जिस सिचुएशन में है, जो रिसोर्सेज है, जो अवेलेबिलिटी है, जहाँ उसकी कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, वहां बच्चा क्या ग्रैब कर रहा है, क्या वो लर्न कर रहा है, क्या उसके माइंड में जा रहा है, और प्लस जो ऑलरेडी उसे नॉलेज मिलती जा रही है क्या वो उसमें और इनपुट डाल रहा है और उस नॉलेज में से वो क्या इन्वेंट कर पाता है. दिस इज रिगार्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट. हाँ, अगर आपका इंटेलेक्चुअली आप डेवलप्ड हो, अगर आपको बहुत नॉलेज है, तो आपकी जो नॉलेज है आपको इमोशनली भी, सोशली भी, मॉरली भी हेल्प आउट करती है. अगर कोई पर्सन इंटेलेक्चुअली वेल नहीं है तो उसके अंदर उसका इमोशनल कंट्रोल भी हम देखेंगे उस लेवल पे नहीं होगा, और सोशली भी वो इतना नहीं होगा, मोरल लेवल भी उसका लो होगा. सो एवरी ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटररिलेटेड. So here comes intellectual development of child. It refers the way that a child's mind and brain function develop. Intellectual development is a way that children make sense of their world. Children are more likely to think increasingly advanced way when they are encouraged to observe, manipulate, explore, listening, make prediction, reflect, identify characteristic of object and event, classify items, experiments, make connection to past experience, use different strategies to solve problems, ask questions. देखिए, जब बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है तो वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करता है,
वो चीजों को वो मैनिपुलेट भी कर लेता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, कुछ वो प्रिडिक्ट कर लेता है, अपने आप से भी उनकी प्रिडिक्शन चलती है, कुछ वो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि उस वो क्या चीज समझ पा रहा है, तो अपनी थिंकिंग भी वो रिफ्लेक्ट करता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको दिख रहे हैं रियल वर्ल्ड में, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं और जो भी लोग उसके आसपास हैं, उनको वो अच्छे से आइडेंटिफाई और उनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स को वो अच्छे से एनालाइज कर पाता है। जो भी आइटम्स हैं उसके पास, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, तो उनको भी अच्छे से क्लासिफाई कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जो पुराने उसके एक्सपीरियंस चल रहे हैं उनको नए एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट कर सकता है, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपना सकता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और उसके माइंड में बहुत क्यूरियस क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी वो पूछ सकता है। So this was the Piaget's stages of development. So first is sensory motor, that is from birth to 2 years, जिसमें बच्चा से 2 साल का होता है। He understands world through senses and actions. 2 साल में बच्चा सिर्फ अपनी सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड को परसीव करता है, और जो वो एक्शन ले रहा है, कोई भी चीज को पकड़ रहा है, उठा रहा है, तो उससे उसकी जो सेंसेस बता रही हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बस यही इसी लेवल तक होती है। Then comes pre-operational stage, that is from 2 to 7 years. So understands world through language and mental images. ठीक है, तो जो भी हम बात करते हैं बच्चे के साथ, या फिर उसको कुछ भी पिक्टोरियल कुछ दिखाते हैं, तो उसके ब्रेन में उसकी बातों से उसके माइंड में भी इमेजेस क्रिएट होते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वहां से वहां तक होती है। Then comes concrete operational stage, that is from 7 to 12 years. He understands world through logical thinking and categories. तो 7 to 12 years में बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हर चीज के पीछे लॉजिक उसको समझ आने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। Then comes formal operational stage, that is 12.5 years. He understands world through hypothetical thinking and scientific reasoning. तो इसमें हर चीज के, हर प्रॉब्लम के, हर बात के उसके पास बहुत सारे वे आउट्स हो जाते हैं, हर चीज की बातों के उनके पास साइंटिफिक रीजंस आने शुरू हो जाते हैं, किसी भी चीज को वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और लॉजिकल माइंड उनका काफी हद तक डेवलप हो चुका होता है, और रीजनिंग पावर भी काफी आ चुकी होती है। So here comes the stage of cognitive development, that is sensory motor, birth to 2 years. So Piaget's earliest stage of cognitive development is the sensory motor stage. Until they are about 2 years old, children spend most of their intellectual efforts integrating their sense with their psychomotor abilities. Hence the term sensory motor. These children consistently assimilate new persons, objects, and ideas through their existing structures and modify these structures while they progress from a bundle of reflexes to a more sophisticated thinker of next stage, because they are relatively predictable, interesting, and uncomplicated creatures. देखिए, इस स्टेज में वही है, सेंसरी मोटर से वर्ड से हमें समझ आता है सेंसेस, और मोटर से आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है। तो बच्चा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से ही उनके अपने जो सेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वो सेंसेस जो है उसी से वो परसीव करता है जो भी उसके आसपास है, अपनी वो साइकोमोटर एक्टिविटीज के साथ, जैसे टॉयज के साथ खेलना, चलना, दौड़ना, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, प्लस उसकी जो सेंसेस उसे बता रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, इनिशियली जब बर्थ होता है वो बिल्कुल अपना मदर की गोद में ही है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होना शुरू होता है, चलता है, उठता है, बैठता है, चीजों को पकड़ता है, ठीक है, और मोटर एक्टिविटीज करता है, और उसकी सेंसेस ऐसे से डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और उसके सेंसुअल जो है सेंसेस है जो, वो उसकी बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आगे बढ़ती है। Then comes pre-operational stage, that is from 2 years to 7 years. Pre-operational children are not yet able to manipulate objects or ideas. They are struck with what they can directly perceive through their senses. When they are presented with some sort of information that confuses their senses, like optical illusion, they are unable to think that the reality must be different from what they see. They have a short attention span. They have an egocentric perspective. They consider action more concrete than words.
तो 2 to 7 years में भी आप देखते हैं कि बच्चे ज्यादातर खेलते नजर आते हैं, ठीक है, और उनको अभी ज्यादा वो मैनिपुलेट नहीं कर पाते या आइडियाज को समझ नहीं पाते हैं। उनसे हम डायरेक्ट बातें करें और आइडियाज हम सोचें कि वो समझ लेंगे, नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। उनकी भी सेंसेस जो है, वो जो उनकी सेंसेस परसीव कर रही हैं, जो वो देख रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, जो वो टच कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं, बस उतना ही उनका माइंड चल रहा होता है। 2 ईयर से ऊपर जरूर हो जाता है, लेकिन अभी उनकी लॉजिकल थिंकिंग या इस तरह का कुछ शुरू नहीं होता है। उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ सेंसेस के थ्रू ही होती है। कोई भी हम थोड़ा सा भी इल्यूजन जो है वो उनको समझ नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है। जो देख रहे हैं उनको वही सच लगता है। उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम होता है और बहुत ईगो सेंट्रिक होते हैं, बिल्कुल अपने आप को लेकर ही कंसर्न होते हैं। उनको लाइव अपने आप को सेंटर में लेके बाकी लाइव घूमती दिखती है। और बेसिकली वो कॉन्क्रीट चीजों में, लाइक तो टॉयज हैं, जो चीजें उनके सामने दिखाई दे रही, जिनको वो टच कर सकते हैं, उस पे वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं। टर्मिनोलॉजीज, वर्ड्स, उनसे बातें करना, वो इतना उनका इफेक्टिव लेवल नहीं होता जितना कि कॉन्क्रीट लेवल होता है। Then comes concrete operational stage, that is from 7 years to 12 years. Children can mentally manipulate objects or ideas as long as they are concretely present or at least directly recalled from memory. The concrete operational child is engaging in low-level abstraction. What this child cannot do is to perform abstractions on abstraction. They can manipulate ideas mentally, but they need props as the ideas presented to them continue to become more abstract. Their attention span is longer than pre-operational children, but they often want to focus on something new. तो इस स्टेज में भी क्या है कि जो बच्चे हैं वो मैनिपुलेट कर पाते हैं आइडिया। 7 to 12 years उनकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज उनके माइंड में नहीं समझ आएगी। तो ज्यादातर वो कॉन्क्रीट चीजों में ही प्रेजेंट रहना पसंद करते हैं और जो उनकी मेमोरी में स्टोर्ड है वहीं से वो उन बातों को रिलेट कर पाते हैं। तो इसमें भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हम कहेंगे, लेकिन लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन इज देयर बट एट लो लेवल। बहुत ज्यादा हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन में से और एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है। और वो काफी जो आइडियाज होते हैं उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ ना कुछ प्रॉप्स चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें कॉन्क्रीट मटेरियल चाहिए जिसको देखकर वो आगे अपने कोई आइडियाज आगे प्रेजेंट कर पाए। इसमें थोड़ा अटेंशन स्पैन हम कह सकते हैं बड़ा हो जाता है बच्चों का। और जो प्री ऑपरेशनल ये जो पीरियड है, ये समथिंग ये फोकस करते रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीजों के लिए। Then comes formal operational stage, that is from beginning from the age 12. तो 12 साल के बाद जो बच्चे थोड़े बड़ा होने शुरू हो जाते हैं। The formal operational learner could solve the problem by simply inventing the imaginary people and moving them around mentally. Even though they are capable of abstract thinking, concrete thinking is still easier. Most people don't get really good at formal operational thinking and use it habitually until they are 21 to 23 years old. तो ये बात है कि 12 years तक उनकी लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काफी डेवलप हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं 12 साल की उम्र तक भी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी नहीं होती है। इट टेक्स, उनको थोड़ा टाइम लगता है टीनेज क्रॉस करने तक। वो काफी ज्यादा उनकी जो फॉर्मल जो कह सकते हैं बिल्कुल ऑपरेशनल जो थिंकिंग वो काफी हद तक उनकी डेवलप हो जाती है। सो ये स्टेज थोड़ी हम कहेंगे पुरानी स्टेज से थोड़ी बढ़िया है, आगे है। इसमें उनकी लॉजिकल थिंकिंग है और इसमें बहुत ज्यादा उनकी कॉन्क्रीट लेवल की जो थिंकिंग है उसको भी वो चलती है, प्लस आगे भी उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।